Yes, okay. So, uh, let's start with the session. So, I'll just put a message on the group. Okay. So, my name is Shaunak Dabadghav, and I would be conducting this session. Uh, the name of the company which is conducting the sessions is BOQ Solutions, and you can say it has been sponsored by Sidebook, which is a tool for a lot of things, basically making estimations, rate analysis, expense tracking, invoicing, all of that. Today, we're not going to talk about it. We are going to fully focus on the rate analysis, which we have pointed out. Okay. So I just want to know, we have conducted a lot of sessions in the past. So probably this would be the eighth or the ninth month we are conducting sessions. So can you just tell me who all of you have attended the rate analysis session earlier, or most of you are first time attendees, so that I just have an idea of how much in depth should I be going, or you guys already have an idea. I hope I'm Dilip ji, I hope I'm audible now. So, has any one of you attended the rate and okay, first time. Nice. Okay. Oh, okay, first time. Fine. Anybody who had attended the earlier rate analysis? Oh, nice, nice, nice. Great. So a lot of first time guys. So we'll go in very much in detail as much as possible. So I have kept everybody on mute on purpose so that there's no disturbance. If you have any doubts, you can put it in the chat box as well. We have made a WhatsApp group. I guess all of you are in that WhatsApp group. So what we are going to do is, in case there is anything you don't understand, what I'm trying to explain at the moment, you can just put it in the chat box here, okay? In case there is some other doubt, you can put it in the WhatsApp group. That WhatsApp group will always be there. So even in the future, if you have any doubts related to estimates or related to analysis, you can put it in the group and anybody can answer it. It's not like the only the admin or only the Sidebook or BOQ solutions people have to answer it. Nothing like that. You can just put it in the chat box and in the WhatsApp group, and we'll make sure that query is resolved. Okay. About me, so I am a civil engineer. I have about 9+ years of experience, and out of that, 6 years into construction execution, and the rest 3 years in more related in estimations and rate analysis only. So we'll get started with the first rate analysis, which is very, very simple, which is PCC work. Okay. I hope I am loud and clear. Huh? My voice is audible, right? So, in case any issues, just put it in the chat box. Um, so, the name of the item is PCC work M15 grade 1:2:4. You can see we have written it here. Now, PCC can come in grades of M7.5, M10, or M15. We're taking it M15. You calculate any of the PCC rate analysis. The methodology is going to be the same. It's not going to change. Okay. Right now, here, if you see, I'll just 1 minute. So here, if you see, we have taken this ratio of 1:2:4. If it is M10, it's going to be 1:3:6. And if it is M7.5, it is going to be 1:4:8. Simple. That's the only thing which will change. Now, we have these materials, which is cement, crushed sand, and metal. Metal is nothing but aggregate. And these are the respective quantities. So you're right now looking at the rate analysis chart. We will be discussing, we will be calculating each of the materials in detail, okay? Very much in detail. So, just for those who are very, very new or those who are students, this will be the rate analysis format for all the items. Whenever you are going to estimate, whenever you are going to calculate rate analysis, this particular format is going to be the format. So, you have
first is your materials, then you have the quantity, then you have the rate, and then you have the cost. So this won't change. This format is not going to change. For every analysis, this will be the format. Now going to the quantity takeoff. So on the material takeoff of how each of the quantities are calculated. So just one different experience I'll share you. So this doubt I had when long back, okay, when I had just started my career, and I had this doubt that PCC is at the bottom of the structure and it takes the load of the whole building. So I used to think, then why is the grade of PCC always lowest? So I had asked this to a structural designer once, that ऐसा क्यों भाई, आपका concrete is M40, C40, C20, whatever, it's a high strength concrete, then and over the whole building load is coming on the PCC. So he had told me that the only purpose of PCC is that it has to make a leveled surface for your footing to rest on. Nothing else. It doesn't have any structural part in that building. So only leveling. So that's why M7.5 से M15 तक कोई भी आप PCC जा सकते हैं. ठीक है. Now यहाँ पे अभी हम मोड ऑफ मेजरमेंट हमारा जो यहाँ लिखा है, विच इज वॉल्यूम, एंड यूनिट इज क्यूबिक फीट. ठीक है. ओके. Now we are going to calculate quantity for 1 cubic meter quantity. So whenever you are going to calculate any rate analysis, it has to be for a considerable quantity. It could be 100 square feet, it could be 10 square meters, it could be 1 cubic meters. So either or, depending on what you are calculating and in what rate per unit you want that item to be in. जिसका मतलब आपको पीसीसी का मुझे क्यूबिक मीटर में रेट क्या होना चाहिए, दिस आई वांट टू कैलकुलेट. सो आई हैव टेकन 1 cubic meter quantity. ओके. नाउ यहाँ पे फर्स्ट what we do is, whenever we calculate, when it comes to concrete or mortar, what we do is we are going to reverse calculate. Just a minute, let me check if I'm recording this. Okay. So what we are going to do is we are going to do reverse calculation. हर चीज के लिए, concrete हो, mortar हो, और कोई चीज हो, we have the finished product. So our wet volume, मतलब जब मैं कंक्रीट में पानी डालूंगा, ड्राई मिक्स में मैं जब पानी डालूंगा, तो my concrete is going to shrink. So that's why that shrink portion, वो मैं 1 cubic meter calculate करूंगा. So what I'm going to do is, my wet volume of concrete is this 1 cubic meter. ठीक है, this particular quantity. Now, okay, sorry, this particular quantity here. I hope you can see that. Now we are going to next step. Just look over here. We are going to add 54% extra for voids to get dry volume. ठीक है. Why is this? Because whenever you add water to your dry mix is basically जो concrete आप dry रहेगा उसमें पानी ऐड करोगे, तो there are considerable voids, जिसकी वजह से जब पानी मिलाते हो it shrinks. So आपका जब ड्राई मिक्स 1.54 क्यूबिक मीटर्स होगा, तब एंड में जो वेट कंक्रीट होगा उसका दैट क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 1 क्यूबिक मीटर. दैट्स व्हाई ड्राई वॉल्यूम मेरा आता है दिस 1.54 cubic meters. Now this particular quantity, my ratio is 1:2:4, right? So this one is cement, so 1 is cement, 2 is crushed sand, and 4 is aggregate. Okay. So मेरे को क्या करना है, I have to divide 1.54 cubic meter, जिसका 1 part is cement, 2 parts are crushed sand, and 4 parts are aggregate. So total कितना parts हो गया? Total मेरा 7 parts हो गया. Okay. 1 + 2 + 4, total 7 parts. इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज 1 part. इसीलिए यहां पे आप देखो मैंने 1 ही कंसिडर किया है ऊपर. दिस इज ओनली 1. ओके. नीचे 7, 1 + 2 + 4 into 1.54. So that is 0.22 cubic meters. I hope
यहां तक समझ में आया, ठीक है, कि हाउ वी गॉट 0.22 क्यूबिक मीटर्स सीमेंट क्वांटिटी. डज एनीबडी हैव एनी डाउट्स और शुड आई गो very slow in speed? I don't mind going slower also, but is this speed okay? Have you guys understood? Okay, great. Thank you. Okay. So now moving on to the next part, which is ये आप देखो अभी यहाँ पे मेरा 0.22 क्यूबिक मीटर का क्वांटिटी आ गया. ओके. So this particular quantity I am going to convert it into cubic feet. ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया 35.31 से, तो मेरा क्वांटिटी आ गया 7.76 क्यूबिक फीट. Why did I convert cubic meters to cubic feet? Only reason is I am very comfortable to convert cubic feet to bags. सीमेंट हम बैग्स में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मेरा रेट है ना सीमेंट का, मैं बैग्स में हमेशा बोलता हूँ कि 350 रुपए का बैग है, तो मेरे को एंड रिजल्ट बैग में चाहिए. So that's why I'm going to calculate in bags. So here I have 7.76 cubic feet. उसको डिवाइड किया 1.22 से. ठीक है, 1.22 CFT इज वन बैग. ये सीमेंट का वॉल्यूम है. एक बैग ऑफ सीमेंट इज 1.22 CFT. तो मेरे पास अगर CFT में है तो मैंने उसको जो भी मेरा क्वांटिटी है विच इज 7.76 इन दिस केस, I divided it by 1.22 to get 6.4 cement bags. So here you can see I have 6.4 cement bags as my quantity. ठीक है, this quantity I got 6.4 cement bags. I hope this is clear, quite simple. Now moving on, and then total quantity of cement is 6.4 bags plus 3% wastage. So whatever is the quantity, हम यहाँ जो हमारा शीट है यहाँ पे डालने वाले. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन सीमेंट OPC आई हैव रिटन 6.59. ठीक है, आई होप यू कैन सी दैट. सो दैट इज इंक्लूडिंग वेस्टेज. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट item, which is crushed sand. So crushed sand is two parts, right? जैसे cement was one part in 1:2:4. क्रश सैंड इज टू पार्ट. सो 2/7 किया है. यहाँ सेकेंड स्टेप आप देखोगे सब 2/7 इंटू 1.54 जो मेरा ड्राई वॉल्यूम है. तो टोटल आ गया 0.44 क्यूबिक मीटर्स. वापिस मल्टीप्लाई करो 35.31 के साथ, क्योंकि मेरे को क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में चाहिए. मेरा क्रश सैंड, माई क्रश सैंड रेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन क्यूबिक फीट, या ब्रास में अगर होगा. आपको जो रेट में आप माल मंगाने वाले हो, that is the final unit you have to calculate your quantity in. ठीक है, so final quantity comes out to be 15.53 CFT in this particular case, plus 3% wastage for my crushed sand. Next is aggregate. So aggregate is 4 parts, right? So volume of aggregate becomes 4/7 into 1.54 equal to 0.88 cubic meters. And that I have converted to, multiplied by 35.31, converted it to cubic feet, और मेरा आ गया 31.07 CFT. So this is my cement, sand and aggregate quantity. अगर मैं यहाँ पे रेट एनालिसिस पे जाऊंगा तो यहाँ आप देख सकते हो, फर्स्ट आई हैव कैलकुलेटेड सीमेंट विच इज 6.59. Second, I have calculated this 15.99 including 3% wastage, and then aggregate is 31.98 including 3% wastage. This I am going to multiply it with their respective rates, whatever the rates are. So I am not going to go in depth with respect to rates. Why? Because all of you guys are going to get access to Sidebook library. So that library has all the rates which are up to date. So you can refer to those rates anytime. Okay. So that access will be given probably from tomorrow. So ये मेरा टोटल मटेरियल कॉस्टिंग आ गया. तो अब देखेंगे 3780
अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे अगर देखो 3,780 इज माई टोटल costing for the material of all items, and then I have the costing for PCC as well, for the labor for PCC as well. For 1 cubic meter, I am putting 30 rupees. So 30 rupees per cubic meter is my rate. ये जो रेट है ना, दिस आई एम कंसिडरिंग इट फॉर माई मेसन एंड माई हेल्पर. ठीक है. मैंने अलग से कारपेंटर वगैरह का इसका इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि जनरली बहुत बार जो मिस्त्री है वही मेरा वो जो नॉमिनल शटरिंग रहता है वही करेगा, तो उसके लिए अलग से मैंने नहीं कंसिडर किया है. तो ये मेरा टोटल आ गया 35.4 इंक्लूडिंग वेस्टेज. सो दिस वाज द फर्स्ट एनालिसिस फॉर पीसीसी. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? Can you just tell me if you have understood? अगर नहीं समझा है, I can explain it as many times as you want. But guys, you have paid for it. Even if it's a small amount, make sure you make the most of it. Okay. So next इस पे जाएंगे. Visiting messages for those who joined or left have been disabled. Okay. So I hope you are understanding. I don't know. I've just you're able to message as well, right? ठीक है. Moving on to the next item, which is RCC band, मतलब पाटली जो हम बोलते हैं. सो यहाँ पे अभी फर्स्ट है ना, बिफोर आई गो टू दिस आइटम, सी व्हाट हैपेंस इज, फॉर दोज हु आर वेरी न्यू, जनरली थियोरिटिकली अभी यहाँ पे आप देखोगे हमने मेंशन किया है नाम पे कि if you see the name, it is, see the highlighted green portion, RCC band 6 inches by 4 inches at every 1 meter height. ठीक है. एंड हमने लिया है 6 इंची का बांधकाम, 6 इंच मेसनरी वर्क. नाउ दिस इज अ वेरी आइडियल कंडीशन, थियोरिटिकली टेक्स्ट बुक कंडीशन है. नोबडी विल डू 6 इंचेस के लिए ब्लॉक वर्क फॉर नॉर्मल. हमारा जो 8 फीट का बांधकाम रहता है, जब मैं बिल्डिंग का बांधकाम बोलूंगा 8 फीट का बांधकाम हमारा रहेगा. सो नोबडी इज गोइंग टू डू अ पार्टली फॉर 6 इंच ब्लॉक वर्क. इफ इट इज 4 इंच ब्लॉक वर्क, देन यस यू विल डू अ पार्टली. ठीक है. This is as per site conditions I'm explaining. Okay, no contractor will do a partly if it's 6 inches. He will only do for 6 inches बांधकाम अगर बंगले का काम है and the height is maybe 10 feet 12 feet more than that. So उस केस में आप पाटली दोगे बीच में. थियोरेटिकली देनी चाहिए, बट nobody gives. That's what I'm trying to explain here. ठीक है. सो अभी हम, because we are explaining this and because this has to be as per the textbook, we have mentioned the item name as at every 1 meter interval. वो हमने mention किया, but that is your choice if you want to consider it while doing it for building one. 4 इंची बांधकाम है तो आपको देना ही पड़ेगा. सो फर्स्ट हम जस्ट लिस्ट आउट करेंगे मटेरियल्स क्या क्या है. सो यहाँ पे अभी मेरे पास एक है सीमेंट, ये ओके सॉरी, एक है सीमेंट, उसके बाद क्रश सैंड, एग्रीगेट, और फिर रेनफोर्समेंट स्टील. ठीक है. एंड देन लेबर फॉर आरसीसी. सो डायरेक्टली हम कैलकुलेशन के पास जाएंगे. सो फर्स्ट क्वांटिटी सीमेंट की हम कैलकुलेट करेंगे. सो दिस कंसेप्ट ना ऑफ पार्टली इज सेम एज टू दैट ऑफ पीसीसी. सो तुरंत बाद में मैंने ये लिया बिकॉज जिनको जिनको अगर पीसीसी में डाउट्स है यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे. कंसेप्ट सेम है, कैलकुलेशंस थोड़े अलग होने वाले. सो आइटम नेम अगर आप देखोगे, आरसीसी बैंड 6 इंच बाय 4 इंच एट एवरी 1 मीटर हाइट इंटरवल फॉर 6 इंच थिक मेसनरी वर्क इंक्लूडिंग नॉमिनल स्टील फ्रॉम वेस्टेज इन 1:2:4 कॉन्क्रीट. जो स्टील है इसमें पाटली में हम डालने वाले, उसके बारे में ठीक है बाद में बात करेंगे. वील स्टार्ट विद द नॉर्मल कैलकुलेशन. सो माय मोड ऑफ मेजरमेंट इज लेंथ एंड माई यूनिट इज रनिंग फीट. ये मैं क्यों बोल रहा हूं,
जो यूनिट मैंने अलग से क्यों लिखा है, देखो यूनिट है ना, लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक इट सीरियसली, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू शुड नो, बिकॉज यूनिट से पूरा गड़बड़ हो सकता है आपके कैलकुलेशन का। तो यूनिट कोई उस पर इतना फोकस नहीं करता है, बट दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डूइंग रेट एनालिसिस। सो मैंने यहाँ सेपरेटली लिखा है रनिंग फीट, हर एक का यूनिट अलग अलग से, जिस यूनिट में मैं निकालने वाला हूँ क्वांटिटीज। ओके, सो सो आर ए फॉर 100 रनिंग फीट क्वांटिटी हम निकालेंगे। मेरा जो पाटली है, ये जो भी दोज हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। बांधकाम है ना, जो ब्लॉक वर्क है, आप वन स्ट्रेच में इट इज नॉट रिकमेंडेड। सो एज पर guidelines for uh, once you are doing block work, you have to have at as per this, at every 1 meter interval, it is better if you have that. Here we are not considering that. Here we are considering that you are doing it for a kind of a bungalow project, जहां 10 फीट या 12 फीट से ऊंचा है, तो आप एक पाटली उस केस में, आप उस केस में दोगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेशन विल सी द कैलकुलेशन। वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज 6 इंच, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज 6 इंच बाय 4 इंच बाय 100 फीट। ओके, 1 मिनट। सो यू आर आस्किंग डाउट फॉर दिस, राइट? Okay, let me know what you're asking the doubt for. I'll just continue till then. So wet volume of concrete will be 6 inches by 4 inches by 100 running feet. 6 inch. So this section you can see. यहाँ पे मेरा जो ब्लॉक वर्क है, that is 6 inches, and the height of the partly is 4 inches. And for whatever I'm going to calculate is going to be for 100 running feet, right? So ये मैंने कन्वर्ट किया है बस फीट में। सो यहाँ पे 0.5 फीट बाय 0.33 फीट, 0.5 फीट बाय 0.33 फीट इंटू 100 रनिंग फीट। So total quantity calculation is 16.67 CFT. Now same calculation I'm going to convert it to uh, I'm going to convert it to dry volume. So I'm going to increase 1.54 for that. So 16.67 into 1.54 equal to 25.67. Now this 25.67, same concept as earlier. This is going to be my dry volume, and this dry volume I'm going to divide it into 1:2:4. So for 1:2:4, I'm going to get again 7 parts, and for these 7 parts, my volume of cement, same concept as that of PCC, same concept is 1 part of cement I'm going to calculate. So 1/7 into my dry volume, whatever is the dry volume. So that's 25.67. So I get 3.66 CFT. So one bag is 1.22 CFT. So 3.66 upon 3 bags upon 1.22 will give you 3 bags. So this is in plus wastage, if you add, that will be 3.09 bags. Okay, 1 minute. Okay. So I'll just confirm that. 1 minute. So M15 concrete ratio is actually 1:2:4, and M20 is 1:1.5:3. But
Sir, if you can give me a reference to that, can you just give me a reference to that? You can put it in the chat box. We'll come to that later. But M15 is 1:2:4 as per what I know. But still, you can give the reference to that, and we'll just surely see. So I hope this calculation is clear for the partly same as PCC, nothing different. Going to the next part, which is calculating crush sand. So crush sand is two parts. So 2/7 into dry volume. So यहाँ पे 7.33 CFT आ गया. So plus wastage is 3%. And volume of 20 mm metal or aggregate is 4 parts. So 4/7 into 25.67. So that is again 14.67 CFT plus 3% wastage. This is same concept is same as per what we had calculated for PCC. Now, when it comes to steel quantity calculation, most of the times waste steel is only used. So if you want, if in case in that particular site you don't have steel, or maybe the RCC contractor is not cooperating and you're not able to, or maybe you're not the RCC contractor and you have to get additional steel, in that case only you have to make sure that you are getting additional steel. So we are going to consider 2 bars. So this basic thing is that you have steel like this 2 bars, and you are going to attach this steel. So this what I am showing you is a top view. This is a plan. So this is my, if I have to show you my block work is going to be this. This particular portion is going to be my block work, and this is the steel which is going to be attached with steel bars only. And this is all going to be waste steel, but still we are going to just calculate the basic quantity of what is going to be the required steel quantity. So considering 2 bars, so यहाँ पे एक section है, आप देख सकते हो in this particular section. So this is the, when you cut the block work, ये steel actually rest होगा. वो अभी बीच में just दिखाने के लिए मेंशन किया है. सो वो नीचे रेस्ट होने वाला है ब्लॉक वर्क पे. सो फॉर 2 बार्स 100 फीट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो 200 फीट इज माय टोटल लेंथ ऑफ द स्टील बार. सो दैट इज इक्वल टू 60.975 मीटर्स. मैंने रनिंग फीट टू मीटर्स का कैलकुलेशन किया. एंड देन वेट ऑफ 8 mm बार when I have to calculate, it is d square upon 162. So that becomes 0.395 kg per meter. ये मेरा 1 मीटर का वेट हो गया. तो टोटल वेट कितना हो गया मेरा 60.975 इंटू 0.395. ठीक है, इक्वल टू 24 kg. ठीक है, सो दिस इज द स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन. इज दिस क्लियर? क्वाइट सिंपल राइट. 2 बार है, 100 फुट जाने वाले, तो 200 फुट मेरा टोटल क्वांटिटी है. 200 फुट डिवाइड किया 3.28 के साथ, तो मेरे को मीटर्स में टोटल क्वांटिटी आ गया. तो ये 60.975 उसमें आ गया. 60.975 को मल्टीप्लाई किया 0.395 से. व्हाई? बिकॉज 0.395 इज केजी पर मीटर. दैट इज माय वेट पर मीटर फॉर 8 mm बार. ठीक है, सो टोटल क्वांटिटी आई हैव गॉट 24 kg, and then I will add 3% as the wastage. So going back here to my quantities. So first is 3.09 meters, which is your cement, 3% wastage के साथ, multiplied by respective rates. Rates I'm not going to discuss right now. We'll go to the rate calculations later on. Then we have crush sand at 7.55, 15.11 aggregate, and 24.72 your steel. So the theoretical calculations we just saw right now for the partly. And then labor is going to be around 18 rupees per feet for 100 feet of partly. So the thing is, why we are giving labor like this is these days most of the times the labor calculations which are done are on item rate basis. Nobody does it on a productivity basis. If you still are interested to find it on a productivity basis as well, do let us know. We have
different calculations for that as well. We can uh, provide you with that, but the thing is nobody goes with प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशंस. प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशंस मतलब क्या कि 100 स्क्वायर फीट है, अगर मैं प्लास्टर कर रहा हूं तो एक मेसन लगेगा, एक हेल्पर लगेगा, एक फीमेल हेल्पर लगेगा. सो ऑल दैट कैलकुलेशन, देन एडिशनल फॉर ओवरहेड, प्रॉफिट, टूल्स, इक्विपमेंट्स. सो ऑल दैट कैलकुलेशन जो आता है, दैट नोबडी डज लाइक दैट. चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो या इनकेस इवन सब कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल्सो डोंट these days do it. It's converted to per square feet cost, and then it is given. So for rate analysis purpose, it is always easier इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने से अच्छा पर स्क्वायर फीट पे जो आपको आपके पास है वो आप यूज करें. सो दैट्स व्हाई लेबर वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ राइट नाउ. सो is this clear, the two calculations? Okay, great. Thank you. So, moving on to the next calculation, which is for brick veneer cladding. So, yeah, quite simple. You don't have to calculate much in this, but you have to know a few things when it comes to this particular calculation. So, again, we are going to calculate it for 100 square feet. 1 minute. Huh? Okay. So we are going to calculate brick veneer cladding for 100 square feet. I will be showing you a video of how the application is done, and then we'll move on to the calculation part of it. So we have first, we'll discuss the materials. So we have the brick veneer plain terracotta, which is first. Second is epoxy grout, and third is tile adhesive. So what I'll do is epoxy grout and tile adhesive. Now I'll show you calculators. So this there's no theoretical. It's complicated to go for theoretical calculations. So generally, in your data sheet of whatever material you're using, there will be coverage written. Okay, so you have to refer to that coverage, or else best is laticrite, or else Mike laticrite. I'll share you an Excel later on, probably tomorrow. That Excel, you just have to feed data, and you will get the consumption constants for your adhesive. And even for grout, I will show you two calculators right now, adhesive and grout, by ROF. So put your details, and it will give you the consumption. So no need to calculate it theoretically also. So first I'll just show the video so that it is for those who are attending for the first time, you have it clear and there's no doubt when it comes to this. Okay, even if you're not able to hear it, no problem. Huh? Sorry, I'll just, yeah. So it's like a tile, okay? It is right now he's doing it on a drywall. But what I want to show it to you is even the application is first he did it on the wall or your plastered surface, whatever it is. Over that, he's again fixing mortar or that adhesive, not mortar actually, this adhesive, and over that he's going to fix that. So your consumption we will be considering on your wall will be 3 mm, जो आपका consumption है, or whatever is the application on the this your face of the tile, face of the brick, it is again going to be 3 mm.
So we are going to consider thickness of that adhesive as 6 mm. Okay, this is first thing. Second thing is, right now we are not considering corners. We are going to take a plain surface. But if you have corners, you are going to have to get this type of tile when it comes to brick veneer cladding. टेराकोटा भी बोलते हैं कुछ लोग इसको. So this is generally done in patches. So patches में क्यों होता है? तो it looks very nice, that particular thing. So इसको पैचेस में करते हैं. बट आपको अगर फुल बंगलो के लिए या जहां भी आप वर्क कर रहे हो इट्स फुल, then the L shaped tile, the rate will change and your analysis you will have to change as per your site condition. Because कितना आपका surface area है, कहां पे वो corners आने वाले, that is going to change. That's why. ठीक है. Now this he is going to do, what he is doing is grout filling. Again इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है. ये हम कैलकुलेटर से ही करने वाले. सो ये like we put a mehendi na, he'll make a cone and he'll put it in that particular fill in the joints basically. So I hope आपको ये समझ में आया. Now we'll go to the quantity calculation for this particular part. ठीक है. So mode of measurement is area, unit square feet, like I told you. Now the size of that particular one brick is 220 by 70. Okay, and my thickness is going to be around 18 mm of that. It's actually kind of a tile because you fix it on the wall, but still it's called brick veneer cladding. So brick veneer size is 220 mm by 70 mm by 18 mm. Thickness of mortar is going to be 10 mm. ठीक है, जो हमारा mortar होने वाला है उसका thickness 10 mm होने वाला है. And brick plus mortar size is going to be so 230 mm into 80 mm. ठीक है. Now here you have 0.23 meters into 0.08 meters converted in meters, and then उसको multiplied by 10.76 we get 0.1981 square feet. So if I have to calculate total कितने bricks आने वाले, what I've done is I've considered 10 feet by 10 feet wall, and that particular area I'm going to divide by 1 unit of that brick. 1 unit का क्या मतलब है कि अगर मेरा सपोज so suppose my this is my brick, ये यहाँ पे दूसरा ब्रिक है, यहाँ पे और एक ब्रिक है. ठीक है. तो ये जो यहाँ ये पोर्शन टू ये पोर्शन, ठीक है, ये जो होने वाला है ना, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज गोइंग टू बी 1 यूनिट, इज व्हाट वी आर सेइंग इज 1 यूनिट. सो ये है 230 mm, इसीलिए हमने वो 10 mm ऐड किया है. और अगर हम आगे जाएंगे, सो वी दैट स्पेस हैज बीन टेकन, राइट. सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट दैट ब्रिक्स, मेरे को वो स्पेस भी लेना पड़ेगा. यहाँ का 5 mm, वहां का 5 mm, तो 10 mm हो गया. सो 230 mm into 80 mm is 0.1981 square feet. I hope the calculations are clear to you on how we calculate from meters to square meters to square feet. Multiply by 10.76 to get it into square feet. And number of bricks is equal to 100 square feet
डिवाइडेड बाय 0.1981, क्योंकि वो एक यूनिट का मेरा साइज है। सो इसीलिए ये आ गया टोटल 505 ब्रिक्स। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, so this you can see 5% wastage we have considered in this particular case. So ये टोटल 530 हमने यहाँ इस केस में पकड़ लिया है। Now next two calculations are quite easy. It is epoxy grout and tile adhesive. So if I go to the calculator, so again, uh, so first we'll go to the adhesive calculator. So this calculator, just put grout calculator or adhesive calculator or go to ROF website best. Now, see earlier now I know which of these adhesives we are going to use. So ROF has this. It will suggest, this particular website will only suggest you which adhesive you should go for. So what I had suggested was ki if I want to go for something like brick veneer cladding, ROF had only suggested that I should go for this particular option, which is ROF Master Fix Adhesive. And here I'll just enter my area, which is 100 square feet, and submit. ठीक है, so this particular quantity is 89.19 kgs for the adhesive. ठीक है, so this is my 6 mm gap. इसीलिए यहाँ पे मैंने 6 mm गैप जो बोला ना, क्योंकि मैंने 3 mm मेरा टाइल पे पकड़ा है और 3 mm मेरा सरफेस पे पकड़ा है, जो वॉल का सरफेस होने वाला है उस पे। तो 6 mm है। तो इफ यू फील दैट योर्स इज मोर, देन गो फॉर हायर। आपका अगर कम होने वाला है, 3 mm होने वाला है, सो इट विल गेट रिड्यूस टू हाफ। सो दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन वी हैव रिटन इट हियर। टाइल एडहेसिव 93.45, 5% वेस्टेज ऐड करके। ठीक है, this is clear, very simple. These all links and everything I'll share it with you if you want. Basically आप अगर सर्च भी करोगे ना ग्राउट कैलकुलेटर, रॉफ ग्राउट कैलकुलेटर, तो पहले ऊपर ही आ जाएगा। सॉरी, रॉफ एडहेसिव कैलकुलेटर। ये समझ में आया ना, आई होप। अभिजीत जी, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट, आई जस्ट सॉ योर मैसेज राइट नाउ। So, which part I have to repeat? Just let me know. If need be, we'll after the session is over, also we can uh, take the doubts or something. Or ठीक है, नाउ नेक्स्ट जस्ट रफ एक ग्राउट कैलकुलेटर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टिल सिंपल। तो यहाँ पे मेरा एरिया कितना है, 100 स्क्वायर फीट है। अभी जो मेरा स्पेस है ना बीच में, जो 10 mm हमने पकड़ा था, अभी उसका कैलकुलेशन हम करने वाले। सो 100 स्क्वायर फीट इज माई एरिया। टाइल विड्थ इज 70 mm, टाइल लेंथ इज 220 mm। उसके बाद जॉइंट विड्थ यहाँ पे मेरी है 10 mm। तो मैं ये सबमिट करता हूँ। टाइल का थिकनेस है 18 mm। ठीक है, सो दिस इज giving me 44. So this is suggesting me 3 materials. So what I have taken is ये जो 44.09 है ना, रॉफ स्टारलाइट। So same Excel calculator, I'll give you one. In that Excel calculator, you put same details, and you'll also get 45 kgs as the quantity. So that's why I've taken 45 kgs as epoxy grout calculator calculation quantity. Can you tell me what I have to repeat? Which part? Grout calculation?
or the adhesive calculation? Okay. So you understood where we are going to get grout, right? In wherever I'm putting that tile, वो जो मेरा क्लैडिंग है ब्रिक विनियर का, उसके बीच में आई हैव अ गैप ऑफ 10 mm। ठीक है, साइड को 10 mm है, ऊपर भी 10 mm है। ठीक है, आई एम फिक्सिंग टाइल, गैप ऑफ 10 mm, अगेन टाइल, गैप ऑफ 10 mm, अगेन टाइल। सो नाउ when I'm going to look, I don't want to see the dry wall or the plastered surface which is behind that. So for aesthetic purpose and so for it to fully fix, I'm going to fix it with grout. I'm going to put grout like he was putting it there in that video, मेहंदी के जैसे उसने वो बीच में डाल दिया था। So that is grout calculation. So now I have to, this link I can share it with you later on. I have to put a certain details of my particular area. तो अभी जब मैं रेट एनालिसिस कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फॉर 100 square feet. Okay, sorry, adhesive you want? Okay, fine, fine. I'll go to adhesive. Has everybody understood this grout calculation? Quite simple, but still, if you haven't understood, no problem. Just let me know. Okay. 0.08 उसका हाइट है, 70 mm का हाइट है उसका। सो हमने क्या किया, जब हम एक यूनिट पकड़ रहे हैं ना, हमने उसको 10 mm, क्योंकि ऊपर गैप है ना, तो 5 mm ऊपर का और नीचे का 5 mm, ऐसे हमने 80 mm पकड़ लिया। तो वो जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो 0.08 हो गया। सो ये एडहेसिव कैलकुलेशन आई एम जस्ट शोइंग वंस अगेन। सो मैंने सबसे पहले ना, दिस आई हैड डन अर्लियर in this particular website only. It is here only somewhere. Okay, I don't know. हाँ, not sure what to choose. Click here to find the right product. इस पे क्लिक किया था, उस पे मैंने मेरे डिटेल्स डाले कि मैं, मेरे को कौन सा स्टोन चाहिए, कंपोजिट स्टोन चाहिए, तो ब्रिक विनियर के लिए सुटेबल होगा क्या। सो it only suggested you should go for this particular item, which is Zroff Masterfix adhesive. Abhi, then only one thing I have to do, put area, very simple. So once I put area 100 square feet, submit it। और यहाँ पे 89.19 केजी कैलकुलेशन है। या आप नीचे देखो 6 mm लिखा है ये। सो क्योंकि मेरा 6 mm ही है, 3 mm इस पे आएगा, 3 mm वॉल पे आएगा, 3 mm क्लैडिंग पे आएगा, 3 mm वॉल पे आएगा। तो 6 mm के कैलकुलेशन के लिए ये मेरा 89.19 केजी है। अगर यही मैं 3 mm लूंगा ना, तो वो हाफ कर देगा। सो ये फॉर दिस 45 केजी हो गया। सो मेरा 6 mm है, इसीलिए मैंने वो वहां पे एनालिसिस में 6 mm डाला। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उतना ही रहता है, इसीलिए हम, दैट्स द मोस्ट यूज केस, सो वी आर कंसिडरिंग दैट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड स्टिल। सो ये देखो, अभी मेरा ना, ये जो हाइट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हाइट है ना, सॉरी, ये जो हाइट है ना 70 mm, ये आप उसके बीच में थोड़ा गैप दिख रहा है, राइट? यहाँ पे ये गैप है, ये यहाँ पे गैप है, तो वो गैप है 10 mm का। तो जब मैं ब्रिक विनियर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या होने वाला है, मेरा लेंथ 220 है और मेरा हाइट है 70, पर वो गैप आने वाला है। मैं अगर उसको क्लोजली लगाऊंगा, तो मैं डायरेक्टली 220, ये मैंने 230 इंटू 80 mm किया है यहाँ पे। ये जो कैलकुलेशन है 230 इंटू 80, ये क्यों किया है, क्योंकि 10 mm का गैप है, उसकी वजह से वो मैंने ऐड किया है।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया मैंने क्यों ये किया, और 80 को मैंने फिर मीटर्स में 0.08 कर दिया। इज दिस अंडरस्टूड? अगर नहीं समझा आप कितने बार भी बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम, विल जस्ट एक्सप्लेन अगेन, नो प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू। एंड आई होप एडहेसिव कैलकुलेशन भी आपको समझ में आया। ओके, ठीक है। सो नाउ दिस इज आवर दिस इज आवर कैलकुलेशन फॉर brick veneer, terracotta, epoxy grout, and tile adhesive. And then I hope आपको दिख रहा है. And then we have labor which is around rupees 40 per square feet. Now this particular labor cost, this is not considering कि आपको अगर कोई बिल्डिंग पे फेस पे क्लैडिंग बना के उस पे करना है तो ये उसका कॉस्ट नहीं है, ये नॉर्मल हमने बंगले का एक कॉस्ट पकड़ा है। आपको उसमें एडिशनल अगर स्कैफोल्डिंग लगने वाला है, आपको नहीं मिल रहा है स्कैफोल्डिंग, then you'll have to put that additional scaffolding cost also. Mostly external plaster या इसमें आपका हो जाएगा, but we have not considered that additional cost in this particular scenario. ठीक है, so this is normal bungalow, for a bungalow project. If you have to do brick veneer cladding on the external face, कभी कभी अंदर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक्सटर्नल के लिए किया जाता है, इंटरनल फेस के लिए भी कर सकते हैं। सो आपको दिस रेट यू कैन रिलाई ऑन, बट इफ देयर इज हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज हाई, आपको स्कैफोल्डिंग लग रहा है, तो उस केस में डोंट गो फॉर दिस पर्टिकुलर रेट। So we can take a for labor on how labor rates are deduced. We will take a different session as well. Uh, okay. Now going to UCR masonry. सो आई होप टिल यर यहाँ पे सबको एनालिसिस सब समझ में आए। सो डोंट वरी, आप जिनको जिनको ऐसा अभी भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन रेफर टू द रिकॉर्डिंग। वी विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग टुमारो एज वेल। आप रिकॉर्डिंग वापस देखिए, आप वी विल शेयर यू द डेटा एज वेल। हम साइड बुक लाइब्रेरी का एक्सेस भी देंगे, तो उसमें और बहुत सारे रेट एनालिसिस आपको मिलेंगे, तो पूरा एक्सप्लोर कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स with respect to analysis estimates, कोई भी है, not respect to only these, this is just because analysis इतने सारे हैं, हम पूरे नहीं कभी ले पाएंगे, तो कुछ भी होगा, you can put it in the WhatsApp group and we try to help you as well. So now UCR masonry is one of the most interesting, one of the most interesting calculations you'll ever see. So I've just attached of basic photo just to explain few things later on while I'm doing the calculation. So यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सो वी आर टेकिंग अ 24 इंच थिक यूसीआर मेसनरी वॉल इन सीमेंट मोर्टर 1:6। सिंपल मटेरियल क्या है, सीमेंट है, क्रश सैंड है, और मेरा स्टोन है, रबल है बेसिकली। सो इसमें सीमेंट एंड क्रश सैंड कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल लाइक वी डिड अर्लियर। रबल कैलकुलेशन इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, बट विल गो टू दैट लेटर। सो यहाँ पे अभी हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट है वॉल्यूम, और यूनिट हम जो बात करने वाले हैं वो क्यूबिक फीट होने वाली है। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेट एनालिसिस फॉर 100 CFT क्वांटिटी, 100 क्यूबिक फीट क्वांटिटी। नाउ जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। वॉल्यूम है 100 क्यूबिक फीट, उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपका जो स्टोन है ना, वो 70% या 75% होने वाला है। ठीक है, 75% स्टोन होने वाला है। थियोरिटिकली 25% मॉर्टर होना चाहिए, बट दैट डजेंट हैपन, इसीलिए 5% फॉर व्हाइट्स, इसीलिए 20% आपका मॉर्टर होने वाला है, वेट मॉर्टर।
ठीक है, समझ में आया? 100 क्यूबिक फीट मतलब अभी पकड़िए, ये मेरा यूसीआर मेसनरी आपको दिख रहा है फोटो, ये मेरा पूरा 100 क्यूबिक फीट है, ये जो है पूरा 100 क्यूबिक फीट है। अगर ये मेरा 100 क्यूबिक फीट है तो उसमें 75% मेरा रबल मेसनरी है, स्टोन है, रबल है। बाकी का 5% वॉइड्स है। वो होने नहीं चाहिए थियोरेटिकली, बट ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो वॉइड्स नहीं रहेंगे, सो वॉइड्स विल बी देयर। सो 20% बाकी का आपका मॉर्टर हम पकड़ रहे हैं। तो टोटल आप अगर देखोगे यहाँ पे, मैंने 20 CFT, वो जो क्वांटिटी है, मैंने वो क्वांटिटी वेट मॉर्टर के लिए 20 CFT, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि ये मेरा कैसे आ गया। अभी मेरा ये वेट मॉर्टर का कैलकुलेशन है, तो मैं इसमें 25% ऐड करूंगा ड्राई मॉर्टर के लिए। पहले कंक्रीट में हमने 54% ऐड किया, इसमें हम 25% ऐड करेंगे। क्यों? फ्रॉम वेट मॉर्टर टू ड्राई मॉर्टर मेरा क्वांटिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि ड्राई मॉर्टर में मैं जब पानी मिलाऊंगा, व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड वाटर, इट्स गोइंग टू श्रिंक। सो इसका मतलब जब मैं 1.25 CFT ड्राई मॉर्टर यूज करूंगा और उसमें पानी मिलाऊंगा, तो उसका क्वांटिटी बनने वाला है 1 CFT। तो इसीलिए मेरे पास अगर एक वेट मॉर्टर की क्वांटिटी है जो कि 20 क्यूबिक फीट है, तो मैं उसमें बढ़ाऊंगा 25%, ताकि मुझे ड्राई मॉर्टर की कैलकुलेशन मिले। ड्राई मॉर्टर का कैलकुलेशन क्यों चाहिए? व्हाई आई वांट ड्राई मॉर्टर कैलकुलेशन? बिकॉज आई नो सीमेंट मॉर्टर का रेशियो, इट इज 1:, इधर 1:4, 1:5 और 1:6। इन दिस केस 1:6। सो जो ड्राई मॉर्टर है उसका 1 पार्ट सीमेंट है और 6 पार्ट सैंड है। इसीलिए मैंने जब 1.25 ऐड किया उसमें, तो मुझे क्वांटिटी मिला 25 CFT। तो 25 CFT के 2 पार्ट्स, 1:6, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सेम कंसेप्ट एज अर्लियर, 1/7 इंटू 25, विच इज माई ड्राई वॉल्यूम, इक्वल टू 3.57 CFT। ये डिवाइड किया 1.22 CFT से। क्यों? क्योंकि एक बैग ऑफ सीमेंट है 1.22 CFT, ठीक है। तो वो मेरा 2.92 bags I've got, and then 2.92 bags plus wastage is, which is 3% for cement in this particular ratio. So that quantity, whatever it is, around 3 bags or something, we have put it in our analysis. I hope this is understood. हमने क्यों 20 CFT लिया, उसका क्यों ब्रेकअप किया। थियोरिटिकली टेक्स्ट बुक से आप जाओगे ना, तो आप अगर 30 CFT या तो मतलब फर्स्ट हम जब थियोरेटिकली कैलकुलेशंस कर रहे थे ना, तब हमको सब वी आर टेकिंग 30% और सो 30% और मोर, वो रेट बहुत ज्यादा जाता है उस केस में। आप कॉन्ट्रैक्टर्स को देखोगे ना, इतना वो रबल मेसनरी के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, वो उनका रेट इतना ज्यादा नहीं रहता है। टोटल रेट है बांधकाम के साथ, वो अराउंड 80 रुपीज, 70-80 रुपीज रहेगा। पर आप जब 30% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हो, अपार्ट फ्रॉम स्टोन, जो आपका वेट मॉर्टर है, दैट दैट रेट विल टेक यू 100+, 110+। तो उसमें काम इतना कोई लेता नहीं है इतने हाई रेट पे। सो दैट्स वाई ये रेशियो है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन सैंड का, 6 पार्ट्स ऑफ सैंड, 6/7 × 25, ये आ गया 21.43 CFT। ये CFT में ही चाहिए, मुझे कुछ कन्वर्ट वगैरह नहीं करना है अभी ना। सो स्टोन कैलकुलेशन के लिए हमको, जो हमारा स्टोन का क्वांटिटी है विच इज 80 CFT, we have to add around 60% to it. Now this is not theoretical, this is practical. Believe we are saying this because we have performed this, मतलब प्रॉपर माल मंगा के कितना कंजम्पशन हो रहा है ये कैलकुलेट किया है प्रैक्टिकली। तो वो अराउंड 60-70% आता है, 60-70%। क्यों? क्योंकि जब आप योर, व्हेन यू आर गोइंग टू
कैलकुलेट क्वांटिटी फॉर रबल, जो वो गाड़ी से आएगा ना उसमें बहुत वॉइड्स होने वाले हैं। वो और उनका भी गलती नहीं है, वो जब जेसीबी या किससे भी वो डालेंगे उसमें, वो प्लेस नहीं करने वाले। यहाँ पे हियर यू सी इट हैज बीन प्लेस्ड प्रॉपरली, इट्स इन द बेस्ट कॉम्पैक्टेड फॉर्म। जब यहाँ पे प्लेस करते मेसनरी आप जब कर रहे हो, ब्लॉक ब्रिक वर्क कर रहे हो, मेसनरी वर्क कर रहे हो, इट इज प्लेस्ड इन द मोस्ट कॉम्पैक्टेड फॉर्म। बट वेन आप आपके इसमें जब डालोगे, ट्रक में जब डालोगे, उसमें इट्स नॉट गोइंग टू बी इन अ कॉम्पैक्टेड फॉर्म, वो कैसे भी होने वाला है, तो उसमें वॉइड्स बहुत होने वाले। सो दैट्स एज गुड एज 60 to 70%। इसीलिए यहाँ पे 60% हमने ऐड किया है, टोटल हमारा जो वॉल्यूम था रबल का उसमें। सो हियर यू सी 80 CFT इंटू 1.6, 1.6 क्यों किया, ताकि 60% बढ़ जाए। तो वो क्वांटिटी आता है अराउंड 128 CFT। तो 128 CFT प्लस 5% वेस्टेज, ये हमारा रबल का कैलकुलेशन हो गया। बहुत सिंपल है, बट इवन वी वर शॉक्ड व्हेन वी फाउंड आउट दैट इतना कंजम्पशन होता है। 60% इज क्वाइट हाई, क्योंकि हम जब थियोरेटिकली कैलकुलेट करने को जाते हैं, वी डोंट थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी सो हाई, but then we understood that yes, it's high because when you place it, it's kept in a very compacted form, but when it comes, वो कैसे भी डाला होता है उसमें वॉइड्स बहुत होते हैं। ओके, और इसका लेबर जो है, इट्स गोइंग टू बी, आई मेंशनड 25 देयर, बट इट इज 30 रुपीज पर CFT when it comes to labor for UCR masonry work. And here we haven't put the tax component purposely, because क्या होता है, जो इनके जो पेटी बहुत पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं इसके लिए, सो GST वगैरह इज नॉट एप्लीकेबल इन व्हेन यू डील विद देम। सो वी हैव नॉट कंसिडर, बट आपको ऐसा कोई मिलता है कि जो ये करेगा इन दैट पर्टिकुलर rate, then you can put that additional GST as well. ठीक है, so I hope this is understood and there are no doubts with respect to this. We are a bit late on time, so in case any doubts, what I will do is I will explain it either later, or else we'll figure something out. We have still 3 big analysis to go as well. Any doubts? I hope you guys understood. For uncourse rubble masonry. Can you just tell yes whether understood or not? Or else I'll keep on talking, and should I go to the next item? Any doubts? Okay, I'm assuming you have understood and we are moving to the next part. Okay, so now this is 30 mm thick double coat sand faced plaster in cement mortar ratio of 1:5. So actually I have attached, 1 minute. There's some issue. I have attached this actually, but it's not here. Just give me a minute. Okay, what we'll do is we'll go to this particular portion later on, because I don't have the sheet attached to this. I have it in my laptop so that I can compare it to that.
Okay. Now we have a bit of a complicated analysis. Not complicated, just lengthy. That's it. Which is for barbed wire fencing. So generally done wherever there is plotting. So this fencing, if you must have seen. So what we are considering is this type of fencing. So यहाँ पे आप देखोगे there is uh, barbed wire fencing which is diagonal in length, and then cement poles are fixed. So we'll go to that. First we'll discuss the materials. We have the cement pole which is 4 inches by 4 inches by 6 feet high. Okay. Then we have the barbed wire. Then we have quarter pins. Quarter pins is nothing but this particular thing which we are looking at is a quarter pin, that is to fix your barbed wire. And then you have cement, crescent and metal, because नीचे वहां पे कंक्रीट करना पड़ेगा. जो सीमेंट पोल है उसको फिक्स करने के लिए कंक्रीट करना पड़ेगा. एंड देन वील डिस्कस द लेबर लेटर ऑन. सो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, 4 फीट हाई बार्ब वायर, 12 by 12 SWG fencing with 5 lines at 9-inch center to center using cement poles of 4 inch by 4 inch by 6 feet height at 8 feet center to center. ठीक है, ये मेरा नाम है उसका. ठीक है गाइज, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग जस्ट लेट मी नो. मैं बड़बड़ करते जाऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा. आपको नहीं समझ रहा है ना, आप मेरे को मेंशन करो यहाँ पे कि नहीं समझाए या समझाए. सेशन के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा. राइट नाउ आई जस्ट for those who have understood, I'm assuming most of you have understood. I'll just move ahead. So here we have no as in understood or not. Fine. I'll just move here. Move to the this. So here I have this is my pole. Okay. I'll just explain this. So ये मेरा pole है. This is my cement pole. This here you can see that's the barbed wire, whichever is in the cross and 5. So this particular distance what you're looking at, this is 9 inches. ठीक है, that is 9 inches. और ये 9 plus 9 plus 9 plus 9, ये मेरा 36 इंचेस है टोटल. टोटल हाइट जो है ना मेरा सीमेंट पोल का, दैट इज 6 फीट. इसमें 2 फीट नीचे है. उसके बाद 6 इंच पे पहला मेरा वायर जाने वाला है. 3 फीट उसके बाद, एंड अगेन 6 इंचेस ऑन द टॉप. ठीक है, सो ये दिस इज माय 6 फीट सीमेंट पोल. सो टोटल नंबर ऑफ सीमेंट पोल्स मेरे कितने आने वाले, क्योंकि मेरा टोटल 100 फीट है और 8 फीट सेंटर टू सेंटर मेरा ये होने वाला है, सीमेंट पोल्स होने वाले. सो दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 12.5 आता है. प्लस उसमें एक एडिशनल पोल, क्योंकि आखिरी वाला पोल रहने वाला है, तो 13.5 पोल होने वाले. यानी कि उसको राउंड फिगर करूंगा तो 14 नंबर ऑफ पोल्स टोटल आई एम गोइंग टू रिक्वायर फॉर 100 रनिंग फीट. समझ गया ये 14 पोल कैसे आए, 14 पोल्स कैलकुलेशन. डिड यू अंडरस्टैंड? और नो? ओके, आई एम अज्यूमिंग अंडरस्टूड. अरे एटलीस्ट गिव थम्स अप और समथिंग यार. ठीक है. सो नाउ वी हैव द, ओके थैंक यू. नाउ वी हैव द बार्ड वायर 5 lines at 9 inch. Now we are going to calculate the barbed wire. Okay, so barbed wire calculation is 5 lines. Very simple. 5 lines and total is 100 feet. So 500 feet is the total barbed wire, but we have the cross wires also. So for cross wires you guys must be knowing Pythagoras, right? So मैंने Pythagoras से वो calculate किया and यहाँ पे उसका calculation mention किया है मैंने. सो आप इसको रेफर करो. 8.54 मेरा एक साइड है 3 फीट, एक साइड है 8 फीट. सो टोटल 9 स्क्वायर फीट, 9 स्क्वायर फीट. और ये मेरा सॉरी 9 प्लस 64
ठीक है, ये आ गया 73, तो स्क्वायर रूट ऑफ 73 मेरा 8.54 आ गया. Okay, regarding dry volume, I will explain in some time. Okay, after session is over, I'll explain again dry volume. So, ये मेरा 8.54 डायगोनल लाइन का लेंथ आ गया. तो टोटल मेरे डायगोनल्स कितने हैं? एक पोल के बीच में दो डायगोनल्स है, राइट. ऐसे टोटल अगर 14 पोल्स है तो उसके सेंटर्स कितने रहने वाले? 13 सेंटर्स रहने वाले, राइट. मतलब बीच का एरिया बेसिकली ये बीच का जो सेंटर का पोर्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरे 13 रहने वाले, 1 2 3 ऐसा. सो ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है 8.54 एक लेंथ इंटू 2 इंटू 13. तो ये टोटल हो गया 222 रनिंग फीट. तो टोटल हो गया 500 प्लस 222 विच इज 722 रनिंग फीट. ठीक है, बहुत बार ना दिस डायगोनल इज नॉट गिवन. अगर आप पूरा लेंथ वाइज भी कर रहे हो तो भी चलेगा, बट दिस शुड बी गिवन एक्चुअली. उसके बाद वेट पर मीटर फॉर 12 by 12 SWG इज 0.164 kg per meter. ये दिस आई हैव गूगल्ड इट, यू कैन जस्ट गूगल इट अगेन, यू विल फाइंड कैलकुलेटर्स. सो टोटल वेट कितना हो गया मेरा? 0.164 kg मेरा वेट है 1 मीटर के लिए. तो मेरा क्वांटिटी आया था यहाँ, आप देख सकते हो 7.22 फीट में. तो मैं उसको यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय डिवाइड कर रहा हूं 3.28 से, ताकि मुझे मीटर में कैलकुलेशन मिले. एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.164 सो दैट मुझे टोटल केजी में वेट समझे कितना है. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड, बिकॉज मैं बार्ड वायर जो लूंगा वो केजीज में लूंगा, इसीलिए फाइनल यूनिट मेरा केजीज होना चाहिए. तो मैंने उसको 36 केजीज मैंने कैलकुलेट किया. उसके बाद क्वार्टर पिंस, तो मैंने क्वार्टर पिंस आपको फोटो दिखाया. सो दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पोल्स into number of pins per pole. Now this particular calculation is wrong here. I will rectify it later once I'm going to send you sheets. So ये जो है ना, ये 5 होना चाहिए एक्चुअली. ये 14 इंटू 5, ये 70 नंबर्स होगा. तो क्योंकि एक पोल में 5 ही लगने वाले, ठीक है, क्योंकि 5 वायर्स है ना मेरे, 1 2 3 4 5, और जो क्रॉस है ना वो एक पिन में दो जाएंगे बार्ड वायर्स. ठीक है, जिनको नहीं समझ रहा है मैं यहाँ फोटो वापस दिखाता हूँ. ठीक है, ये मेरे 5 क्या है, कैसे है. तो एक मेरा ये है, 1 2 3 4 एंड द लास्ट वन विच इज नॉट सीन 5. यहाँ पे कहाँ पे होगा? ठीक है, सो दीज आर द 5 क्वार्टर पिंस जो मेरी लगने वाली है. क्वार्टर पिंस का फोटो यहाँ कहाँ पे तो था. हाँ, सो दिस इज द क्वार्टर पिंस फोटो. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. आई होप दिस इज अंडरस्टूड, नो बडी हैज डाउट्स. 70 नंबर्स क्वार्टर पिंस कैसे है आपको समझ में आया? 14 पोल्स है, 5 एक में लगेंगे. Now, concrete calculation, na, I am not going to explain in depth because the concept is same of what I have told you earlier. But somebody asked regarding dry volume, so I'll just explain that right now. So, मेरा wet volume क्या है इस केस में? 4.5. वो wet volume कैसे आया? मैंने जो सॉरी मैंने जो ये साइज पकड़ा है ना मेरा, ये जो कैलकुलेशन है मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट दिस इज 2 फीट. ठीक है, ये आपके साइट कंडीशन के हिसाब से आपको लेना है. अगर हार्ड स्ट्राटा जल्दी मिले तो आप कम भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर मैंने 2 फीट कंसिडर किया. ये मेरा होगा 1.5 फीट, और इसका जो साइड विजिबल नहीं है वो भी 1.5 फीट. ठीक है, सो 1.5 फीट मतलब 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 2 फीट. तो ये मेरा टोटल 4.5 CFT कैलकुलेशन आ गया. ठीक है, अभी when I have to convert from dry volume to wet volume, so sorry, this is my wet volume. So when I have to convert from my wet volume to my dry volume, for concrete I'm going to add 54%. For mortar it was 25%. ठीक है, वो that is because of your जो श्रिंक होता है ना आपका वेट कंक्रीट, उसकी वजह से हम ऐड कर रहे हैं ड्राई के लिए.
तो ये मेरा 6.93 आ गया। अभी मेरा रेशियो है 1:4:8 का, इसीलिए सेम कैलकुलेशन है ऑफ व्हाट आई एक्सप्लेन अर्लियर फॉर मॉर्टर एंड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कैलकुलेशन अगेन because this is the same calculation and again we are going to discuss it for external plaster as well. ठीक है, I hope this concrete calculation is not necessary. So that, see, I'll just tell this. So this is calculated. Now there is, when you convert from wet volume to dry, the reason for that is there are voids in your crust sand or sand, whatever river sand or whatever you're using. So for that scenario, there is a difference in your concrete and mortar. Second reason is also the workability. If your workability is high, that also makes that is also responsible for the percentage to change. Because फ्लोरिंग के लिए आप जब कैलकुलेट करोगे ना आपका जो मॉर्टर, वो 15% ही आपको ऐड करना है फ्लोरिंग के लिए, क्योंकि वो वर्केबल नहीं रहता है। अगर वर्केबल नहीं रहेगा तो उसके वॉइड्स आप उतने क्लोज नहीं होने वाले। आप कंक्रीट देखिए, कंक्रीट आपका एकदम वर्केबिलिटी हाई होती है। उसके बाद दैट इज वन रीजन। द सेकेंड रीजन इज वॉइड्स, जो वॉइड्स का क्लोजर है, तो उसके वजह से परसेंटेज चेंज होगा। तो फ्लोरिंग के लिए मैं फ्लोरिंग और प्लास्टर क्यों कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मॉर्टर है, कंक्रीट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजंस दिस वी आर इंक्रीजिंग। ठीक है, वन एक्सप्लेनेशन आई डिडंट मेक हियर इज, यहाँ पे आप अगर देखोगे जो हमारे पोल्स है ना, नंबर ऑफ सीमेंट पोल्स, वो हमने 22 लिए, पर हमने कैलकुलेशन 14 का किया था। तो ये 14 कैसे है, ये जो 22 है वो कैसे है, बिकॉज आप यहाँ के देखिए, ये हॉरिजॉन्टल पोल्स है। ठीक है, सॉरी डायगोनल पोल्स जो है, सो डायगोनल पोल्स जो है ना, वो हमने कंसिडर किए आफ्टर इंटरवल ऑफ एवरी 3 पोल्स। तो मतलब मेरा एक पोल है जहां ये डायगोनल पोल्स है, उसके बाद सीधा पोल सीधा पोल सीधा पोल, उसके बाद वापस चौथे एवरी फोर्थ पोल आई एम गोइंग टू हैव दीज डायगोनल पोल्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ पोल्स मेरे 22 नंबर्स हो गए, एंड दैट कैलकुलेशन आई हैव मेंशनड इट हियर एट द बॉटम। ठीक है, सो यू कैन रेफर टू दैट कैलकुलेशन लेटर ऑन। सो टोटल जो पोल्स हो गए वो 22 नंबर्स हो गए। 1 मिनट, आई जस्ट रेफर टू दिस। बार ड्वायर कैलकुलेशन आपको आई होप समझ में आया कि कैसे 36 kg हमारा आ गया। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट किया, पहले टोटल लेंथ कैलकुलेट किया वायर का, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया मीटर्स में, पहले रनिंग फीट में आया फिर मीटर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा केजी पर मीटर हमको पता था 12 बाय 12 गॉज के वायर का, तो वो हमको 36 आ गया। उसके बाद क्वार्टर पिंस ये 70 है, ये मैं चेंज करके आपको दूंगा, 98 नहीं 70 होना चाहिए। सीमेंट क्रस्ट और मेटल सेम कैलकुलेशन किया मैंने, एक का पहले कैलकुलेट किया फॉर वन फाउंडेशन, आई कैलकुलेटेड फर्स्ट, एंड देन दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन आई मल्टीप्लाइड बाय फॉर 14 फुटिंग्स, मेरे 14 फुटिंग है। मैंने 2 फीट कैलकुलेट किया, तो मेरा आपको अगर हार्ड स्ट्राटा आएगा जल्दी, तो आपका कंजम्पशन कम होने वाला है, अब जरूरत नहीं होने वाली है ज्यादा ये करने की। उसके बाद अभी मेरे लेबर है ना, इस केस में एक लेबर है एक्सकेवेशन फॉर पोल, उसके बाद पोल इरेक्शन, कॉन्क्रीटिंग एंड फिक्सिंग, इसका मेरा रहने वाला है 50 रुपीज पर नंबर, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। और लेबर फॉर वायर फिक्सिंग है 1.25 रुपीज पर रनिंग फीट। सो आई हैव जस्ट मेंशनड इट अगेन। रेट एनालिसिस की जो लाइब्रेरी, यू आर गोइंग टू बी गिवन एक्सेस फॉर द साइड बुक लाइब्रेरी विच हैज 1000+ आइटम्स। तो उसमें आपको आई थिंक 1 मंथ का एक्सेस रहेगा। उसके बाद ये तो डेटा मैं आपको दे दूंगा।
So all types of rates, material and labor rates are accessible in that library. You can refer in that. So barbed wire fencing, is this clear? Are there any doubts with respect to this? Okay, I'm assuming no. And moving on to the next item, which is waterproofing. So I'll take I'll take waterproofing first, and then I'll take external plaster. Suraj, yes, in UCR masonry, you had any question? Okay. So this now is a bit difficult. This was actually taken in part one as well, but a lot of people had a bit of complications when I started explaining brickbat. So I'll request you to please pay attention to this. Okay. So we are going to take brickbat waterproofing for a top terrace right now. And the materials we are going to use is clay brick, cement, river sand and waterproofing. इसमें जो नॉर्मल कैलकुलेशन है ड्राई टू वेट वगैरह वो तो आसान है. टू कैलकुलेट दिस आपको कुछ कंसिडरेशंस करने पड़ते हैं. सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट हियर विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स ओनली. सो ये जो कंसिडरेशंस है ना उसकी वजह से थोड़ा सा इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, नथिंग एल्स. So till now analysis are understood, right? Just if you can give me thumbs up, it will I will understand that okay, it is, some of you at least are able to understand this one. I will guarantee you no one will have analysis to brickbat waterproofing like we do, because you need to have that practical considerations as well. Theoretically this is bit complicated, that's why. ठीक है. So we are going to calculate for 100 square feet. Let's assume that we have a top terrace which is 10 feet by 10 feet in height. ठीक है. तो ये मैंने एक टेरेस का ड्राइंग ड्रॉ किया है. और यहाँ पे अभी बिकॉज हमको स्लोप मेंटेन करना है, ठीक है. मेरा जो ड्रेन है ना वो यहाँ पे, ये मेरा ड्रेन है जो येलो मार्किंग मैंने अभी किया. और मेरा हाईएस्ट पॉइंट प्रोबेबली यहाँ पे होने वाला है. सो वहां से ये कोने तक मुझे स्लोप चाहिए, ठीक है. तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनिशियली वर्टिकली ब्रिक्स लगाने वाला हूं पूरे. ठीक है. वर्टिकली ब्रिक्स लगाने वाला हूं मतलब क्या. सो दोज अरे सॉरी, हाँ, वर्टिकली ब्रिक्स लगाने वाला हूं मतलब क्या. इस फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पे पहले उसने ये जो ब्रिक्स लगाए यहाँ पे नीचे, ये पूरे वर्टिकली लगाया. ये पूरा ये दिस आर ऑल वर्टिकली, ठीक है. या उसको हम एज फेसिंग भी बोल सकते हैं. एंड यहाँ पे ग्रीन कलर में जो लगा है ये पूरे हॉरिजॉन्टली लगा है, ठीक है. क्यों, उसको ही वांट्स टू मेंटेन अ स्लोप. आइडियल कंडीशन वुड भी ये जो येलो मार्किंग है ना वैसे ही वर्टिकल, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा आता है तो आपका अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. बट ठीक है, वी हैव टू मेंटेन अ स्लोप. एंड एंड में वहां पे छोटे छोटे टुकड़े रखे जाएंगे. सो अभी हमारा अगर 100 स्क्वायर फुट का टॉप टेरेस है तो हमको उस केस में 20% एरिया है ना हम ऐसे वर्टिकली रखने वाले ब्लॉक्स, ठीक है. और बाकी का जो एरिया है 80% एरिया है वो हॉरिजॉन्टली रखने वाले, ठीक है. तो मेरा 20% का जो ब्लॉक ऊपर से दिखने वाला है उसका साइज अलग रहने वाला है. और मेरा जो 80% जो हॉरिजॉन्टल है ऊपर से ये रहने वाला है वो अलग रहने वाला है.
Are you understanding what I'm saying right now? कि what I'm trying to say, or is it not understanding? Okay, ठीक है. I'll just try to explain it with my best capacity. So first, what I have to do is now I have to calculate number of bricks. तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे ब्रिक की साइज पता होनी चाहिए. ठीक है. अभी मैं क्या, मेरे पास क्या है, ऊपर से देख रहा हूं मैं, तो मेरे पास 100 स्क्वायर फीट का एरिया है. ये यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है. ये जो बॉक्स क्या है वो 10 फीट का है, 10 फीट का बॉक्स है. वो मेरा 100 स्क्वायर फीट है. तो अगर मेरे पास 100 स्क्वायर फीट का एरिया है ना, तो मुझे ब्लॉक्स कैलकुलेट ब्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए ऊपर का फेस पता होना चाहिए. तो एक है मेरा फ्रॉग साइड अप. ठीक है. मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये जो यहाँ पे रखा है, ठीक है, जो मैंने पहले ग्रीन मार्किंग किया था वो फ्रॉग साइड अप है. और ये बाजू में दिख रहा है पहले, वो वर्टिकल है, वो एज फेस अप है. दोनों के एरियाज अलग होने वाले हैं. 20 स्क्वायर फीट, ये जो है 20 स्क्वायर फीट, ठीक है, ये एज फेस अप है, इसीलिए उसका हमने 0.26 बाय 0.095 लिया है. ठीक है. क्योंकि उसका एज फेस अप है. और ये जो है दूसरा 80 स्क्वायर फीट, वो हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए उसका 0.26 इंटू 0.13 लिया है. ब्रिक का साइज है ये, नथिंग एल्स. ठीक है. अभी ये कैलकुलेशन है 20/0.26 एंड 80/0.36, ये आप देख लीजिए. तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं 300 नंबर्स, क्लोज टू 300 नंबर्स. इस तरीके से जब हम रखेंगे, ठीक है, सो 300 प्लस वेस्टेज. नाउ हमको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, तो मॉर्टर कैलकुलेट करना है, राइट. मॉर्टर कैलकुलेट करना, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक इट्स इजी टू कैलकुलेट मॉर्टर फॉर दिस पर्टिकुलर, व्हेन यू लुक एट दिस थिंग, इज इट इजी टू कैलकुलेट मॉर्टर? It is very very easy. Why? Because first thing you have to know, आप क्या कैलकुलेशन करने वाले हो. आपका टोटल वॉल्यूम क्या है जो आपका वाटर प्रूफिंग होने वाला है उसका, माइनस आपका ब्रिक्स का क्या वॉल्यूम कंजम्पशन होने वाला है. ये दो चीजें आपको मिलेंगे ना, तो आपको वेट वॉल्यूम मिल जाएगा मोर्टर का. और उससे आप ड्राई वॉल्यूम निकाल के सीमेंट और सैंड भी निकाल सकते हो. सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, तो मेरा टोटल वाटरप्रूफिंग का वॉल्यूम. उसके लिए मुझे थिकनेस लगेगा और एरिया लगेगा. एरिया तो मेरे पास है 100 स्क्वायर फीट. थिकनेस क्या है, तो थिकनेस में लेने वाला हूं, मैं अज्यूम करने वाला हूं कि थिकनेस ड्रेन के यहां 2 इंच होने वाला है, और जो मेरा एक्सट्रीम एंड है वहां पे 6 इंच होने वाला है. तो टोटल मेरा 4 इंच आने वाला है. तो ये मेरा थिकनेस हो गया टोटल वाटर प्रूफिंग का. अभी 100 स्क्वायर फुट इंटू 4 इंच, ये मेरा टोटल वाटर प्रूफिंग का वॉल्यूम आ गया. ठीक है. ये मेरा 33 CFT आ गया वॉल्यूम. इज दिस अंडरस्टूड हाउ आई गॉट 33 CFT एंड व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग दिस, और नो? ठीक है. आई एम अज्यूमिंग यू हैव अंडरस्टूड. ओके. If not, you can tell me as many times I'm ready to explain. But just let me know if you have understood as well. Next, we have to calculate volume of bricks. Why? Because total mortar का जो वॉल्यूम है, वो कैलकुलेट करने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटरप्रूफिंग माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स. सो यहाँ पे हमारे टोटल 300 ब्रिक्स है, 299 ब्रिक्स है. तो 299 इंटू ब्रिक साइज किया है हमने. ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रिक साइज है. तो वो टोटल आता है 15.84 CFT. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ वेट वाटर, जैसे मैंने पहले बोला, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटरप्रूफिंग माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वो आता है 17 CFT. तो ये मेरा वेट वॉल्यूम हो गया. इसके आगे का जो कैलकुलेशन है सेम है जैसे पहले हमने किया था, कोई डिफरेंस नहीं. फिर भी हम क्विकली एक बार देखते हैं. यहाँ पे हमने ड्राई मॉर्टर
पे कन्वर्ट करने के लिए 25% उसको बढ़ा दिया। मॉर्टर मतलब 25% बढ़ाना है, आप दिमाग में बैठ जाइए। कंक्रीट मतलब 54% बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी ये 21.45 CFT मेरा ड्राई मॉर्टर आ गया, तो 1:5 का हम अज्यूम कर रहे रेशियो हम साइड पे फॉलो करेंगे, जो हम पहले 2-3 बार हमने अभी तक डिस्कस किया है। सेम वे वी कैलकुलेटेड सीमेंट बैग्स, ओनली कैच इज वी आर गोइंग टू एड 0.5 सीमेंट बैग्स हियर फॉर 2.5 0.5 सीमेंट बैग एक्स्ट्रा फॉर सीमेंट स्लरी एज बेस कोट, और उसके बाद भी हम एक बैग एक्स्ट्रा ड्राई एप्लीकेशन करेंगे पतरा घोटाई के लिए। ठीक है, तो ये एक बैग और ऐड कर लिया, तो टोटल कैलकुलेशन मेरा कितना हो गया? जो 2.93 बैग्स हमने कैलकुलेट किए थे हमारे मोर्टर में जाएंगे, उसके बाद आधा बैग सीमेंट स्लरी का जो बेसकोट लगाएंगे, और उसके बाद एक बैग जो पतरा घोटाई के लिए ऊपर से डालेंगे। तो ये हो गया टोटल 4.43 बैग्स प्लस वेस्टेज, आपका जो सीमेंट कैलकुलेशन होगा। ठीक है। ओके, नाउ 1 मिनट। ओके, so we have now same way we are going to calculate volume of river sand, 5 parts, very very simple। ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको मिल जाएगा। then we have company declared consumption for waterproofing chemical is waterproofing chemical is 200 ml per 1 bag of cement, so very simple। तो हमको सीमेंट बैग्स का जितना मॉर्टर में लगने वाला है, तो सॉरी जितना टोटल में लगने वाला है, multiplied by that we'll get around 1 liter of cement, 1 liter of waterproofing chemical, and then we have the labor rate. So that is for brickbat waterproofing, it is 35 rupees per square feet, and 5 rupees per square feet additional for chipping, cleaning, and surface dressing. Is this understood or not? Or am I just talking? Uh, did you have any doubts with respect to your for brickbat? Because I'll have to move to my laptop right now. I'll have to change this. So coming back would take some time again, because external plaster is in that particular quantity, in that particular laptop. That's why. Any doubts with respect to this? Okay. Okay, great. So all 6 analysis which we discussed till here are understood, I'm assuming. And I will now just give me a minute. I will just exit from here and connect through this. Okay. I hope I'm still audible. Just थोड़े settings change हो गए इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। So now going to the last rate analysis which we have, which is external plaster. So this is 30 mm thick double coat sand faced plaster in cement mortar 1:5. I hope the screen is visible. Huh? Okay, so actually I was going to explain it in that only, but the thing is this was not there. I was not able to see this analysis. Okay, so external plaster is double coat. We are considering double coat right now. So first coat will be 20 mm thickness and second coat will be 10 mm thickness. अगर आप, मैंने इसमें जब कैलकुलेशन किया है ना, तो 20 mm और 10 mm दोनों का अलग से किया है। आप
बेसिक लॉजिक लगाओगे, 20 mm का निकालोगे और उसके बाद उसको हाफ करोगे ना, तो भी आपको 10 mm का सेम क्वांटिटीज you'll get, and you'll have to add 20 mm plus 10 mm, and then you'll get all the materials. So for external plaster which is 100 square feet, you have cement, river sand, plumbing nails, and chicken mesh in the calculation. So we'll go to the calculation because we are already out of time. Mode of measurement is area, unit is square feet, and we are going to calculate for 100 square feet quantity. So first calculation, this is the first part which is for 20 mm thick. Now why are we doing this 20 mm पहले 10 mm बाद में? Because क्या होता है external plaster में बहुत बार your wall is not in plumb. So when wall is not in plumb, first 20 mm is to make sure that it is leveled, पूरा लेवल में है. उसके बाद 10 mm जो है वो आपका प्रॉपर उसको ये करेगा, प्लास्टर स्मूदनिंग करके आप फाइनल फिनिश करने वाले हो. ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट. द इनिशियल कैलकुलेशन इज सिंपल. सो wet volume of mortar is 100 square feet because we are calculating for 100 square feet into, okay, wet volume of mortar is 100 square feet into 0.02, क्योंकि 20 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट किया और उसको हम CFT में चाहिए, इसीलिए 3.28 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो दैट इज 6.56 CFT. नाउ वी हैव, उसके बाद हम 20% पहले ऐड करेंगे फॉर जॉइंट्स, गैप्स एंड अनइवन सरफेसेस. मतलब हम व्हाट वी आर डूइंग इज, हम हमारा मॉर्टर का कंजम्पशन ही ज्यादा होने वाला है 20%. ये हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि गैप्स रहने वाले, जॉइंट्स होंगे और अनइवन सरफेस होंगे, तो 20% यू हैव टू ऐड. दिस इज स्टैंडर्ड. सो मेरा वेट वॉल्यूम क्या होता है, 6.56 इंटू 1.2, तो दैट इज 7.87 CFT. ये मेरा बढ़ के आ गया वेट वॉल्यूम. ठीक है, उसके बाद ड्राई वॉल्यूम में मुझे कन्वर्ट करना है, तो इस केस में वापस 25% में ऐड करूंगा. तो ये मेरे एट 25% टू गेट ड्राई वॉल्यूम. सो टोटल आ गया 7.87 इंटू 1.25 विच इज 9.84. दिस इज माई ड्राई वॉल्यूम. माई सीमेंट वाटर रेशियो इज 1:5. एक सीमेंट 5 रिवर सैंड. सो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज 1/6 इंटू ड्राई वॉल्यूम. सो 1.64 आता है, डिवाइड बाय 1.22, क्योंकि मेरा एक बैग सीमेंट इज 1.22 CFT. सो 1.35 बैग्स आते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ रिवर सैंड इज 5/6, 5 पार्ट्स इंटू ड्राई वॉल्यूम. सेम कंसेप्ट जो हमने पहले किया, सेम कंसेप्ट, नथिंग एल्स. दिस इज फॉर 20 mm. 10 mm के लिए आप इसका आधा भी करोगे ना तो भी चलने वाला है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने यहाँ पूरा कैलकुलेशन किया है, तो आप अगर देखोगे ये मेरा 9.84 आया, ये मेरा 4.92 आया. इट्स हाफ, बट स्टिल आई हैव डन द कैलकुलेशन जस्ट इन केस आपको रिपीट करना है. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द कैलकुलेशन. अभी मेरा पहला लेयर हो गया थिकनेस का 20 mm का, उसके ऊपर 10 mm का. तो मुझे दोनों का सीमेंट क्वांटिटी, दोनों का रिवर सैंड क्वांटिटी ऐड करना है. वन मोर थिंग इन दिस इज, रिवर सैंड जो आप यूज करोगे वो आपको वेस्टेज हाई पकड़ना है इसमें, क्योंकि आप वो फिल्टर आउट करते हो, इसमें सीव्स से पास करते हो. तो इसीलिए आप, जो रिवर सैंड का इसमें वेस्टेज होता है ना, वो क्लोज टू 20% तक पकड़ा जाता है. सो वो हमने एनालिसिस के यहाँ मेंशन किया है. अब वहां पे हम जाएंगे तब वी विल डिस्कस द वेस्टेज परसेंटेज एज वेल. सो टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फॉर 2 कोट्स इज 1.35 प्लस 0.67 विच इज 2 बैग्स, प्लस मुझे आधा बैग पहले जो मैं सीमेंट पानी मारूंगा ब्लॉक्स पे, फॉर दैट आई एम गोइंग टू रिक्वायर. एंड आफ्टर दैट अगेन पहला कोट लग गया, दूसरा कोट लग गया, उसके बाद में ड्राई एप्लीकेशन करूंगा उसको स्मूदनिंग करने के लिए. उसके लिए मैं आधा बैग 100 स्क्वायर फीट में पकड़ रहा हूं. तो एक बैग मेरा बढ़ गया, तो टोटल 3.02 बैग्स प्लस वेस्टेज आ गया. तो हमने 3 बैग्स प्लस वेस्टेज कंसिडर किया है.
और total quantity of river sand is 12.3 CFT plus 20% wastage. Have you understood till here? Or are there any doubts? Okay, great. Thank you. Now, okay, moving on to the next material calculation. So I have just attached a few photographs. This is the initial cement slurry application. This is the first coat application. This is the dabba plaster. So if have you seen the dabba plaster? So dabba plaster these days is done in patches because the reason is uh, when you do the painting, the coverage is reduced for painting if you're doing dabba plaster. डब्बा प्लास्टर यू जस्ट सर्च अ वीडियो लेटर ऑन डब्बा एक्सटर्नल प्लास्टर. वो ऐसा डब्बा रहता है उसमें ऐसे छोटे 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 यू विल फाइंड द क्या बोलेंगे उसको जस्ट टू हैव अ फिनिश एक्सटर्नल प्लास्टर फिनिश. तो डब्बा प्लास्टर आप करोगे तो इट इट अर्लियर यूज्ड टू डू फुल बिल्डिंग के लिए बट नाउ डेज इट्स डन इन पैचेस बिकॉज उसका कवरेज ज्यादा होता है उसके जब पेंट करोगे उस पे तो इसलिए डब्बा प्लास्टर नहीं है. आप नॉर्मल एप्लीकेशन करोगे तो भी चलने वाला है. नाउ जस्ट वन एडिशन. आपका जो आरसीसी जॉइंट और ब्लॉकवर्क जॉइंट होगा उसमें जीआई चिकन मैश आपको लगाना पड़ेगा. सो फॉर दैट दिस कैलकुलेशन इज देयर. सो फॉर 100 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली 27 फीट ब्लॉकवर्क टू आरसीसी जॉइंट आने वाले. तो ये हमने क्या किया है, ये 8 फीट का मेरा वॉल है और ये 10.5 फीट का मेरा हॉरिजॉन्टल पोर्शन है. तो यहाँ पे पूरा मेरा ये लगने वाला है. ये जो पोर्शन है ना ये पूरा मेरा जो जॉइंट आने वाला है वो मेश लगने वाला है. तो टोटल आप करेंगे 8 + 8 16 प्लस 10.5 तो अराउंड क्लोज टू 27 फीट मेरा मेश आएगा चिकन मेश डिवाइडेड बाय एक रोल है ना. अभी ये मैं रोल में खरीदूंगा 6 इंच का रोल आता है तो एक रोल 20 मीटर का रहता है. इसीलिए मुझे अगर रोल में चाहिए तो 27 फीट अपॉन 20 मीटर. 27 फीट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट के लिए चाहिए मुझे, राइट. तो 27 फीट अपॉन 120 मीटर्स तो ये मेरा 0.41 रोल्स आता है. और प्लम्बिंग नेल्स एट 1 फीट सेंटर टू सेंटर 30 नंबर आते हैं. ये 27 फीट है पर अभी यहाँ पे मैं एडिशनल लगाऊंगा कॉर्नर्स पे इसीलिए 30 नंबर्स राउंड अप किए. एंड देन लेबर इज ₹30 पर स्क्वायर फीट फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर. ओके, क्वाइट सिंपल एनालिसिस बट for first timers it could be complicated. कुछ there might be some things which I feel are very simple but I'm not explaining it in detail and you're not understanding. अगर ऐसा कुछ है you can put it in the group anytime and we'll make sure that it is resolved at the earliest. Okay. If you want any more analysis also, now we are, it's not, I know it's not easy to grasp so many analysis in a span of 1.5 hour or 2 hours, but it's okay. You can always refer to the recordings later on. We will upload this on YouTube and it will be accessible to you always. Plus you guys have access to a very nice sidebook library, so you can refer to the sidebook library anytime. It has some very exciting features. So lots and lots of rate analysis are there and you can make as many combinations as you want within the rate analysis. So now I'll just show you this इंटरनल प्लम्बिंग इनसाइड टॉयलेट. सो एक टॉयलेट का खर्चा है ना उसका पूरा इन डेप्थ एनालिसिस है एंड दैट इज 52,000. बट देयर कुड बी न्यूमरस कॉम्बिनेशंस, राइट. मेरे पास अगर बिलो काउंटर बेसिन नहीं है, मेरे को अबव काउंटर बेसिन चाहिए, तो जस्ट सिलेक्ट दिस एंड इट्स गोइंग टू चेंज द कॉस्ट. मुझे
हाफ बॉडी टैंक नहीं चाहिए मुझे, फुल बॉडी टैंक चाहिए मेरे क्लाइंट के लिए, ये कॉस्ट चेंज कर देगा। एंड देर आर रेट रेफरेंसेस कि कौन सा स्पेक लिया है, उसका रेट हमने कहाँ से लिया है, तो ये पूरा आपको उसमें मिल जाएगा। सो यू हैव एक्सेस टू इट, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हो उतना आप इस्तेमाल करो। कुछ भी आपको डाउट आएगा बाद में, यू कैन ऑलवेज आस्क अस। सो दिस नाउ टोटल कॉस्टिंग ये पूरा चेंज हो गया, सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। So we have completed all the 6 analysis. I will share the video and all the necessary details to you tomorrow. If there are any doubts, you can still ask me. I will give my best to explain it to you. And also refer to the sidebook library whenever you get time. You have full access to it for 1 month. Even after that, most of the items are already visible, so you can keep on looking. ऐसा नहीं है कि लॉक्ड है या ऐसा कुछ है, 70% ऑफ द आइटम्स आर विजिबल टू यू, सो आप कभी भी उसको रेफर कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट। Thank you for being so patient and listening to me for the past 1.5 or 2 hours. Any doubts, feel free to put it. We'll give you all the details tomorrow. Okay. And one more thing, we would be participating in ASTEC exhibition. So if you guys want to come, check Sidebook there. Please feel free to come to ASTEC. It is this Friday, Saturday, Sunday. So we'll all be there. Thank you.